Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all will be fine. This is new Countdown Book 1 third edition. Let's open Countdown Book 1 and our Book of Science for Maths Planner. Today we are going to start our lecture number 9, week number 10 from Countdown page number 66. Activity addition of three numbers. Write the sum of three numbers in the center of each triangle. Look for groups of 10. One has been done for you. These are some triangles. आपको इनके तीनों numbers को add करना है. First you took two numbers and add these and then pick third number, add the first answer and third number. Look at this. Here three numbers 33, 17 and 9. You have to pick first two numbers 33 and 17. 33 plus 17 which is equal to 50. Now you have to take first answer and the third number. 50 plus 9 which is equal to 59. Our final answer is 59. Right in this triangle. Okay. Look at this triangle 9, 37 and 21. First you have to add these two numbers 9 and 37. You have to add these vertically. आप इन नंबर्स को वर्टिकली भी ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट वंस को ऐड कीजिए, 9 लाइन्स ड्रॉ कीजिए, 7 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ 9 and 7. Count these lines 9 and 7, we get 16 lines. These are 16 lines. Right here 6 and 1 in the tens column. So add this one and 3 plus 1 4. Answer is 46. Now pick third number 21 and first answer 46. Add 46 and 21. Draw 6 lines in front of 6 and 1 in front of 1. Add these lines 6 plus 1 7. Now draw 4 lines in front of 4 and 2 in front of 2. Add these lines, we get 6. Our final answer is 67. Right here 67. Okay, you have to write these sums like this here. Okay. Second question, three numbers 24, 16 and 58. First you have to add first two numbers 24 and 16. आप 24, 16 को vertically add कीजिए. First ones को add कीजिए 4 plus 6. Okay, 4 lines draw कीजिए 6, 4 plus 6 we get 10. Right here 0 and 1 in the next tens column. Now add this 1 into 2 and 1, we get 4. Our answer is 4. Now pick up third number 58 and first answer 40. First answer और third number को add कीजिए. First ones को add कीजिए 0 plus 8, 8. 4 plus 5, 9. Our final answer is 98. You have to write in this center 98 and write these sums here like this. Hope you got it. You have to do all these triangles, solve all these triangles and write the answer in center of all triangles. आपको first पहले दो numbers को add करना है, फिर first answer और third number इन दोनों को add करना है और final answer center में लिख देना है. Move on next page number 67, word problems addition. Word problems हमारी real life से relate कर रहे होते हैं. Look at this. Tahir has 14 coins. Jamal has 23 coins. How many coins are there altogether? ताहिर के पास 14 coins हैं और जमाल के पास 23 coins हैं. तो दोनों के पास total कितने coins हैं? Here altogether is the keyword. आपको 14 और 23 को add करना है. First draw 4 lines and 3 lines. Add these ones 4 plus 3 7, 1 plus 2 3. Okay, 37 coins. दोनों के पास total कितने coins थे? 37. Rahman played 15 cricket matches in 1 year and 12 matches in the second year. How many matches did he play in the 2 years? रहमान ने पहले साल में 15 क्रिकेट मैचेस खेले और दूसरे साल में 12 क्रिकेट मैचेस खेले. तो आप बताएं कि उसने दोनों सालों में टोटल कितने मैचेस खेले. तो ऑब्वियसली दोनों सालों के मैचेस को ऐड कीजिएगा. फर्स्ट आपको पहला नंबर लिखना है 15, सेकंड नंबर 12. राइट केयरफुली अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. वंस कहाँ लिखना है, टेंस कहाँ लिखना है. ओके, नाउ फर्स्ट ऐड दीज वंस. 5 into 2 7, 1 1 2. ओके, आप लाइंस ड्रॉ करके कर सकते हैं. Our answer is 27. He played 27 matches in 2 years.
Maha has 54 stamps. She collect 15 more. How many stamps does she have altogether? Maha के पास 54 stamps थी. She collects 15 more. उसने 15 और collect की. तो आप बताइए कि दोनों total कितनी stamps collect की? First you have to write 54, then 15. Now add ones, 4 and 5. We get 9. 5 plus 1, 6. She collects 69 stamps. Okay. Gibran has 18 biscuits and Parvez has 20 biscuits. How many biscuits do they have altogether? जिब्रान के पास 18 बिस्किट्स हैं और परवेज़ के पास 20 बिस्किट्स हैं. तो दोनों के पास कितने बिस्किट्स हुए? फर्स्ट यू हैव टू राइट 18 देन 20 एंड ऐड दिस नंबर. फर्स्ट ऐड वंस देन टेंस. 8 प्लस 0 8. 8 में 0 ऐड कीजिए, मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना, जस्ट 8. तो 8 ही आंसर आएगा. 1 प्लस 2 3. 38 बिस्किट्स. ओके, टोटल इन्होंने कितने बिस्किट्स इनके पास हैं? 38. At Shafiq's birthday party, there are 22 boys and 17 girls. How many children are there altogether? शफीक की बर्थडे पार्टी पर 22 बॉयज़ हैं और 17 गर्ल्स हैं. तो टोटल बच्चे कितने हैं? फर्स्ट यू हैव टू राइट 22 देन 17 एंड ऐड फर्स्ट वंस. आपको पहले वंस ऐड करना है. 2 प्लस 7 9. 2 प्लस 1 3. ओके, 39 चिल्ड्रन आर टुगेदर. Move on next page, page number 68, addition comparing numbers. Let us compare numbers to identify how much more one is from the other. आपको इसमें कंपेयरिंग में ये बताना है कि एक नंबर अगर ज़्यादा है तो वो कितना ज़्यादा है दूसरे नंबर से. लेट्स सपोज यहाँ है कंपेयर 6 and 1. आपको 6 और 1 को कंपेयर करना है, यानी 6 1 से कितना बड़ा है. बोबो द बनी जम्प्स ऑन द नंबर लाइन रीच 6. 1 से स्टार्ट कर रहा है, बोबो 6 तक जा रहा. बोबो हैज़ जम्प्ड 5 टाइम्स टू रीच 6. कितनी जंप्स लगाई 1 से 6 तक पहुंचने के लिए? 1 2 3 4 5. बोबो को 5 जंप्स चाहिए थी 1 से 6 तक पहुंचने के लिए. इट मीन्स वी से 6 इज़ 5 मोर देन 1. यानी 6 कितना बड़ा है 1 से? 5 टाइम्स बड़ा है. यानी अगर हम 1 में 5 ऐड करें तो 6 आएगा. ओके, अगर 8 और 4 को कंपेयर करें तो इट मीन्स 8 4 से कितना बड़ा है? जंप्स काउंट करके देखते हैं. 4 से 8 तक जंप्स लगाई बोबो ने. 1 2 3 4. इट मीन्स 4 टाइम्स बड़ा है 8 4 से. यानी 4 में हम 4 और ऐड करेंगे तो 8 आएगा. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. कंपेयर द नंबर्स एंड राइट हाउ मच मोर वन इज़ फ्रॉम द अदर. कंपेयर 8 एंड 5. 8 और 5 को कंपेयर करना है, यानी 8 कितना बड़ा है 5 से. तो आपको जंप स्टार्ट करने हैं 5 से, यानी फॉरवर्ड जंप करना है. आपको स्मॉल नंबर से बिगर नंबर पे जाना है. 5 से हम 8 तक इस नंबर लाइन को यूज़ करते हैं, जंप्स लगाते हैं 5 से 8 तक. 1 2 3. हमें 3 जंप्स चाहिए 5 से 8 तक पहुंचने के लिए. इट मीन्स 3 टाइम्स बड़ा है 8. यानी 5 से कितना बड़ा है? 3 टाइम्स. 8 इज़ 3 मोर देन 5. यानी 8 3 गुना बड़ा है 5 से. यानी 5 में अगर 3 ऐड करें तो 8 आएगा. कंपेयर 11 एंड 13. तो हम 11 से जंप स्टार्ट करते हैं 13 तक. ओके, 11 से जंप स्टार्ट करें 13 तक. 1 2 जंप्स. इट मीन्स 13 इज़ 2 मोर देन 11. यानी 13 2 गुना ज़्यादा है 11 से. यानी अगर हम 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आएगा. ओके, कंपेयर 12 एंड 7. आपको 12 और 7 को कंपेयर करना है, तो 7 से जंप स्टार्ट करें 12 तक. 1 2 3 4 5. इट मीन्स 5 टाइम्स मोर देन 7. यानी ये 12 इज़ 5 टाइम्स मोर देन 7. यानी 12 5 टाइम्स बड़ा है 7 से. इट मीन्स 7 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा. 12 इज़ 5 मोर देन 7. इसी तरह 7 और 14 को कंपेयर कीजिए. 7 से 14 तक जंप्स लगाएंगे. कितनी जंप्स आएंगी? 7. 15 और 9 को अगर आप करें तो 9 से जंप स्टार्ट करें 15 तक. 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स 15 इज़ 6 मोर देन 9. ओके, I hope you got it. Move on next page. Page number 70, addition. Write the number in the given box which should be added to get the answer. First you have to find and write in the given box. Okay, look at this. 3 plus blank is equal to 8. 3 में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास 8 आएगा आंसर. आपके पास 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट आप 3 से आगे काउंट करना शुरू करें आंसर तक.
यानी गिवन डिजिट से आंसर तक आप काउंट करें, 3 से 8 तक, 3 से आगे 4 से स्टार्ट करें, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर तक स्टॉप कर दें. नाउ काउंट दीज लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स. सो राइट हियर 5. इट मीन्स 3 + 5 इज इक्वल टू 8. नाउ लुक एट दिस, 5 + ब्लैंक विच इज इक्वल टू 7. 5 पे क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 7 आएगा. सो इट मीन्स 5 से आगे काउंट करें, यानी 6 से स्टार्ट करें 7 तक. 6, 7. हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 2. सो आवर आंसर इज 2. यानी आपको जो गिवन डिजिट है उससे आगे काउंट करना शुरू करें आंसर तक. 2 से आगे काउंट करें, 3 से स्टार्ट करें, यानी 2 से आगे 3 आता है, 3 से 9 तक काउंट करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ तक लाइन्स ड्रॉ होगी. नाउ काउंट दीज लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो आवर आंसर इज 7. इट मीन्स 2 + 7 इज इक्वल टू 9. इसी तरह आप 7 से आगे ऐड कीजिए, काउंट कीजिए 8 तक. 7, 8, 1 लाइन ही आएगी. 12 से आगे काउंट करें, 13, 14, 2 लाइन्स आएंगे. यानी एक मेथड ये है कि आप गिवन डिजिट से आगे काउंट करना शुरू करें आंसर तक. आंसर तक स्टॉप कर दें और फिर उन लाइन्स को या फिंगर्स पे काउंट करें तो उन ब्लॉक्स को काउंट कीजिए. ओके, जितनी लाइन्स ड्रॉ हुई उतना डिजिट यहाँ लिख दीजिए. और सेकंड मेथड है कि आप आंसर में से गिवन डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दें. क्वेश्चन एडिशन का है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें. यानी आंसर 8 है, गिवन डिजिट 3 है, तो 8 - 3 कर दें. 8 लाइन्स ड्रॉ करें, 3 लाइन्स कट कर दें. कितनी लाइन्स बच गई? 5 लिखते हैं यहाँ पे. यानी एक मेथड तो था 3 से आगे काउंट करना शुरू करें आंसर तक, गिवन डिजिट से आगे काउंट करना शुरू करें आंसर तक और फिर उन लाइन्स को काउंट करें. और सेकंड मेथड है आंसर में से गिवन डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज answer is 7 and the given digit is 5. You have to subtract answer and given digit. Okay, given digit को आंसर में से subtract कीजिए. 7 lines draw करें in front of 7 and cut 5 lines, we get 2. So our answer is 2. Okay, now look at this. Answer is 14, given digit is 12. So subtract 14 into 12, 12 into 14. 12 को 14 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए. फर्स्ट वंस को सॉल्व कीजिए. ड्रा 4 लाइन्स इन फ्रंट ऑफ 4, कट 2 लाइन्स. 2 लाइन्स आर लेफ्ट, राइट हियर 2. ड्रा 1 लाइन इन फ्रंट ऑफ 1 एंड कट 1 लाइन. 1 लाइन ही कट कर दी तो 0. इट मीन्स जस्ट 2. सो राइट हियर 2. आप आंसर में से गिवन डिजिट को सब्ट्रैक्ट कीजिए या गिवन डिजिट से आगे काउंट करना शुरू कीजिए आंसर तक और फिर उन लाइन्स को काउंट कीजिए. You have to complete this page number 70. Move on page number 71. Subtraction. Subtract vertically and then horizontally. आपको vertically भी subtract करना है, horizontally भी subtract करना है. 18 - 7. First subtract कीजिए ones को. Draw 8 lines in front of 8. Cut 7 lines. 1 line is left. Right here 1. And the second one, इसके नीचे कोई digit नहीं, so 1 as it is. 18 - 7. Numbers are the same but दिस वन इज़ इन हॉरिजेंटली फॉर्म. ओके, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल नंबर्स तो सेम है. 18 - 7, तो आंसर भी सेम आएगा. 5 - 3. यू हैव टू ड्रा 5 लाइन्स, कट 3 लाइन्स, 2 लाइन्स आर लेफ्ट. इट मीन्स 5 - 3 डजेंट मैटर राइट इन वर्टिकली और हॉरिजेंटली. द आंसर इज ऑलवेज सेम. आंसर सेम ही रहेगा आपका क्वेश्चन अगर वर्टिकली या हॉरिजेंटली है. डिजिट्स पे डिपेंड करता है, डिजिट्स सेम है. 6 - 1, 5. 6 - 1, 5. 7 - 7. You have to draw 7 lines and cut 7 lines. ऊपर वाले डिजिट के सामने लाइन्स ड्रॉ करें, नीचे वाले डिजिट को काट दें, तो इट मीन्स यहाँ कोई लाइन ही नहीं बची. 7 - 7, 0. You have to write vertically and then horizontally. Okay. You have to complete this page number 71. Okay, and revise table 2 to 5. I'm going to end of this lecture. I hope you all got it. So see you next inshallah. Fi amanillah.